Hello everyone, this is our new chapter number 7 of the RBSc syllabus, trigonometric identities. It is the second part of the trigonometry portion. The very first part is trigonometric ratios, in which we discuss the basic introduction related with the trigonometry and the values of the angles like 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90 degree. And in this case, we will relate all the 6 functions which are the trigonometric function like sin theta with cos theta with tan theta with cos theta. Similarly, sec theta, cosec theta means in this volume we will discuss about the relation between all the trigonometric ratios to each other. So before the starting of this chapter, I want to introduce you about the basic introduction of this chapter. From the Pythagoras theorem or the Bodayan theorem, हमें देखो ये मान लो तो entire trigonometry which is based on right angle triangle. Let's suppose this is right angle triangle ABC and B is equals to 90 degree. Now before the starting of the trigonometry, we will consider any angle also in the given triangle. Let's suppose this is the angle theta. तो ये थीटा होगा तो बेसिकली ये 90 माइनस थीटा होगा. मीन्स अपन यदि एंगल ये कंसीडर करेंगे तो ये अपना होगा बेस. दिस इज परपेंडिकुलर एंड इट इज हाइपोटेन्यूस. बात समझ में आ गई यहां तक. और अपनी बोधायन थ्योरम क्या है? इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, इन द 9th स्टैंडर्ड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. In any right angle triangle, the square of the longest side, which is AC, the square of the longest side is equals to sum of the squares of the remaining two sides, is equals to sum of the square of the remaining two sides, means AB square plus BC square. Let's suppose this is the equation number first. Are you agree with it? Okay. First of all, I am dividing the equation first by AC square. It is the mathematically operation, nothing I did special. I am dividing the entire equation by AC square in the left side and right side also. So what will you get? AC square upon AC square is equals to AB square upon AC square plus BC square upon AC square. Are you agree with it? Both are same, cancel, result is 1. And for this we can say that AB upon AC whole square and this is BC upon AC whole square. Clear? According to this structure, AB is perpendicular. So I am writing here perpendicular and AC is hypotenuse whole square. Got it? Plus BC. BC is base upon, for the base I am writing B only and H for the hypotenuse whole square. Clear है यहाँ तक? And according to the trigonometric ratios, we know that sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equals to base upon hypotenuse, and tan theta is equals to perpendicular upon base. About this method, about this content we have discussed in the previous one chapter. P upon H is equals to sin theta. So it is equals to sin theta whole square plus B upon H is equals to cos theta whole square. And it can written in this format also, sin square theta plus cos square theta, or therefore we and also we can say that sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So this is the very first identity of the trigonometric portion. So please student pause this and note it down. And our next part is, from this identity we can get two observations also, which are
our identity is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Got it? तो यहां से भी साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. फर्स्ट इज दिस, और वी कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. बात समझ में आई? एक छोटी सी बात एक्सप्लेन करता हूं मैं यहां से. थीटा वेयर थीटा इज, ध्यान रखना, अब जितना भी अपन ने कंटेंट पढ़ा है उसमें हमेशा अपन ने ये किया है, if x square is equals to y, then x is equals to plus minus under root y. But in this case, I am not using here plus or minus symbol because the reason for it, देखो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री की जो भी टेबल पढ़ी थी अपन ने रिसेंटली, उसमें जो जितनी भी वैल्यू थी वो 0 से लेकर 90 तक था अपना. 0, 30, 45, 60. बात समझ में? तो 0 पे साइन की वैल्यू क्या थी? 0 एंड 90 पे क्या थी? 1. इसका मतलब यहां पे 1/2, 1/√2, √3/2 all are positive. No one was negative. मीन्स सभी की सभी वैल्यूज पॉजिटिव थी, कोई भी सिंगल वैल्यू भी नेगेटिव नहीं थी. इसका मतलब क्या हुआ कि, और अपना ये एंगल देखो कितना है, ये एंगल डेफिनेटली ये मोर देन 0. ओके, एंड 90 की इक्वल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो इन ए ट्रायंगल 2 एंगल्स नेवर बी इक्वल टू 90 डिग्री. क्योंकि दो एंगल यदि 90 के होंगे तो तीसरा एंगल कितने का होगा? फिर भाई 180 तो ये दोनों कवर कर गए, फिर ये क्या होगा? 0. तो जो कि पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल कितना होगा? या तो 0 से बड़ा होगा एंड लेस देन 90 डिग्री, और 0 से बड़ा और लेस देन 90 मींस यहां से लेके यहां तक सभी वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव है. इसलिए यहां पर नेगेटिव सिंबल पॉसिबल नहीं है. बात समझ में आई यहां तक? चलिए फिर आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90. आर यू एग्री विद इट? एंड बेसिकली पूरी ट्रिग्नोमेट्री अपनी इसी पे बेस्ड होगी. थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी. Next observation is cos square theta is equals to 1 minus sin square theta, and cos theta is equals to under root of 1 minus sin square theta. So please pause this and note it down also. So this is our first and very first and the basic identity of the trigonometric portion. These are two observations we got from this identity, and now we are proceeding the next identity, which is, I am erasing this one, which is, let's suppose it is the equation number 2. क्योंकि फर्स्ट अपन ने इसको ए बोल देता हूं, चलो ए, इक्वेशन नंबर ए. आप जो अपन इक्वेशन फर्स्ट बोला था आप उसको भी सिंप्लीफाई करके आगे की आइडेंटिटीज डेराइव कर सकते हैं, और यहां से भी नेक्स्ट आइडेंटिटी का डेरिवेशन हो जाएगा. वो कैसे होगा? डिवाइड द इक्वेशन ए बाय साइन स्क्वायर थीटा, एंड इन नेक्स्ट अब आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि सर आपने साइन स्क्वायर थीटा से क्यों किया? तो फिर साइन स्क्वायर थीटा आप कोस स्क्वायर थीटा से करके देख लेना. मींस नेक्स्ट टाइम अपन कोस स्क्वायर थीटा से करेंगे. So first of all, I am dividing the entire equation by the sin square theta, and what will we get? Sin square theta upon sin square theta plus cos square theta upon sin square theta is equals to 1 upon sin square theta. Got it? Sin theta upon sin theta, both are same in the formation of square. So the result is 1 square and answer is 1. Cos theta upon sin theta is cot theta. It is the reciprocal of tan theta. So we can say that cot theta and is cot square theta. In formation of square is equals to 1 upon sin theta. Is this the reciprocal of the cosec theta? So equals to cosec square theta. This is the second identity. And from here again we will get two observations. First observation is, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो इसको इधर लेके आएंगे, क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1.
बात समझ में आई यहाँ तक। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, 1 को इधर ले आओ तो यहां से बन गया कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, these are two basic observations we got from the identity number second, and this is equation identity number B. Are you agree with it? Now for the third identity, divide the entire equation A or the identity A by cos square theta. चलिए cos square theta से डिवाइड किया, क्या मिला, sin square theta अपॉन cos square theta प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। व्हाट इट, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी of the trigonometric portion, and this is the last identity. And from here again we can get two observation. इसको इधर ले आओ, क्या मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 को इधर लाएंगे तो सेकंड क्या मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू लर्न this one and this one. These are important. आपको डायरेक्टली लर्न करनी, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप डेराइव करें और फिर आप कैलकुलेशन पे जाएं. सो इट इज ओनली ऑफ द वेस्टिंग ऑफ द टाइम. अब मैंने तो बस एक्सप्लेन किया है कि इसका प्रोसीजर ये होता है, मेथड ये होता है, इसलिए ये आइडेंटिटीज हमें ये मिली है. बट यू विल नॉट ट्राई इन द एग्जामिनेशन. फॉर योर नॉलेज यू कैन adopt this one, but in the examination you will not use this type of the thing or this type of the process. Okay student, this is our the basic introduction of chapter number 7, and now let's start from the first question of exercise, which is question क्या रहेगा अपना. एग्जाम ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन कंटेन करता है चैप्टर. काफी इंपॉर्टेंस है, एनसीईआरटी आरबीसी इन बोथ एग्जामिनेशन. अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल दे रखी है आपके फर्स्ट पेज पे ही, जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें क्या है कि एक दूसरे को एक दूसरे से रिलेट करना है. मैं इसमें कुछ रिलेशन आपको सामने एक्सप्लेन करता हूं, और यदि ये टेबल आप इजीली सोल्व कर पाते हो, कंप्लीट स्ट्रक्चर इस टेबल का आप सब फॉर्मेट जो समझ पाएंगे, तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर लोगे. और इसका मेथड क्या रहेगा देखो, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं क्या क्या प्रोसीजर है. फर्स्ट आपने को दे रखा है साइन थीटा, और टेबल के अकॉर्डिंग लिखो तो यहां पे लिखा हुआ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा. क्लियर? अब हमें क्या करना है, साइन थीटा को साइन थीटा के टर्म में, तो साइन थीटा के टर्म में साइन थीटा ही होगा. मीन्स साइन थीटा को ऐसे सोल्व करो कि उसका रिजल्ट भी साइन थीटा में आए, तो साइन थीटा का रिजल्ट साइन थीटा में साइन थीटा ही होगा. सेकेंड, साइन थीटा को कोस में कन्वर्ट करना है कि साइन थीटा को किसके इक्वल करें कि जो भी आंसर है वो कोस में हो कंप्लीटली. तो इसको अपन लिख सकते हैं, रिसेंटली अपन ने डिस्कस किया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. देखो आ गया, साइन थीटा की टर्म है कोस में कन्वर्ट कर दिए. नेक्स्ट, देखो हमें कन्वर्ट करना है इसको टेन थीटा में. टेन थीटा में कैसे करेंगे, हमें ये पता है साइन थीटा इज इक्वल्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है टेन थीटा. या फिर चलो थोड़ा सा यहां से देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. थोड़ा टाइम इस पे आप माइंड को सेट करें और आधा पार्ट इस पे सेट करें. मीन्स दोनों पैरेलल चलने चाहिए कि साइन का टारगेट हमें टेन में लाना है, तो साइन को इस हिसाब से टर्न करो, टेन को भी पीछे से, कि टेन की कौन सी वैल्यू टेन में कन्वर्ट हो सकती है और उसको आप साइन में ला सकते हैं. कोई मीडिएटर बनाना होगा तो टेन सेक में अवेलेबल है. तो मैं लिखता हूं यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1.
second was 1 plus tan square theta is equals to sec square theta, and third was 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. देखो यहां से साइन कोस में कन्वर्ट हो सकता है, कोस सेक में कन्वर्ट हो सकता है, और सेक टेन में जा सकता है। समझ में आई बात? यहां से ऐसे चलेगी। देखो साइन कोस में कन्वर्ट हो गया, नाउ वी विल कन्वर्ट कोस इनटू सेक एंड देन सेक कैन कन्वर्ट इनटू द टेन। चलिए करते हैं, क्या होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कोस में कन्वर्ट हुआ, अब कोस को सेक में कन्वर्ट करना। चलो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, गॉट इट, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इज एलसीएम माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये बात भी समझ में आ गई। सेक स्क्वायर थीटा इज, देखो यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड होल अंडर रूट 1 कैंसिल बाय 1, tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट tan थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू चल रही है, सभी इक्वल में चल रही है, फाइनली रिजल्ट किस में आ गया आपका, tan में। मींस ये बन गया tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट कोसेक थीटा में, नाउ वी विल चेंज साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा, सो इट इज डायरेक्टली 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, सिंपल। और साइन को कन्वर्ट करना है सेक में, तो साइन को कोस में बदल लो, कोस सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेके लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इन अंडर रूट, फाइनली सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज सेक थीटा। ये मत कर देना, ये इससे उड़ गया, ये गलत है, क्योंकि होल स्क्वायर होता तो पॉसिबल था, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो एक फॉर्मेट हमें ये मिल गया, क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। ये लर्न करना नहीं है, ये आपकी एफिशिएंसी, आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी को शो को चेक करने के लिए। नेक्स्ट, अब देखो कोट में, तो साइन कोट का रिलेशन कोसेक के साथ में, क्या हम साइन को कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, ये कोसेक में हो गया, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा यहां से क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये कोट में आ गया अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सो इन दिस मैनर यू विल solve the complete table in form of, now we will change cos theta into sin theta, cos theta into cos theta, cos theta into tan theta, cos theta into this and this, after tan theta, after sec theta, cot theta, cosec theta. Similarly we will solve and try to convert from here into there, got it? So I am leaving this one portion for you and I am going to start now the exercise 7. Here only one exercise is there. All the questions are very easy. चलो, exercise 7.1, our first question. Change all the trigonometric ratio for the angle of theta in term of sec theta. मीन्स हमें क्या करना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इन सभी को कन्वर्ट करना है और किस फॉर्म में लाना है हमें, सेक थीटा के फॉर्मेट में। कैसे पॉसिबल होगा, ये अपन ने रिसेंटली अपने साइन थीटा के लिए डिस्कस कर चुके हैं, तो वापस से स्टार्ट करता हूं। देखो, साइन थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट करना, कोस थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट करना, टैन थीटा को कोट थीटा सेक थीटा, ऐसे करके इन सभी को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, सेक थीटा में। तो पहले बात करते हैं साइन थीटा।
आइडेंटिटी लिख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखो, आप साइन थीटा को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, सेक थीटा में। तो सेक थीटा किससे मिलता है, कोस थीटा से। क्या साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट हो सकता है? यस, इट इज पॉसिबल। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई। एंड इट इज इन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेशन कोस सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई होगी सर, बिकॉज कोस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। और इसको लिख सकते हैं अपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा आफ्टर द एलसीएम एंड फाइनली सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। अब देखो साइन थीटा किसके टर्म्स में आ गया, सेक थीटा के टर्म्स में। क्लियर। नेक्स्ट अब हमें किसको कन्वर्ट करना है, कोस थीटा को, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सेकेंड कोस थीटा, कोस थीटा को लिखना है तो ये तो डायरेक्टली लिखा जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, ये सेकेंड हो गया, फर्स्ट सेकेंड नाउ थर्ड। tan थीटा, tan theta is directly related with the sec theta and it can be written in this formation sec square theta minus 1. Clear? Now cot theta, cot tan में कन्वर्ट हो सकता है तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन tan theta. Cot theta is 1 upon tan theta and 1 upon tan theta is from here sec square theta minus 1. This is the fourth part. फिफ्थ इज सेक थीटा, तो सेक थीटा तो अपने आप में सेक थीटा है। क्लियर। एंड सिक्स्थ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को साइन में ला सकते हैं और साइन कोसेक में ऑलरेडी आ रखा है तो 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मीन सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अपन ने क्या किया है इन दिस केस, वी चेंज साइन थीटा कोस थीटा टैन कोट सेक एंड कोसेक इन टर्म्स। देखो सभी में, इसके रिजल्ट में भी सेक है, यहां भी सेक है, यहां पर भी सेक ही है, ये भी सेक है और एक और बच गया ये। ऑल दीज 6 फंक्शंस वी चेंज्ड all the ratios into the sec theta. So it is the answer of our first question. So student, please pause this and note it down. And I think it is enough for the today's lesson. The remaining portion of the exercise we will start from tomorrow. And in this exercise there are total near about 29 questions and after miscellaneous. Sorry, 2 exercises are there, 7.1 and 7.2. But questions are easy. If you will understand the basic concept and the basic introduction of the exercise or chapter, then easily you will adapt the method and can get the answer. I hope you understood the entire process, and if you feel any kind of the difficulty, then please student comment in the comment box and regularly watch all the videos from beginning to the last. So thanks for watching. Thanks.